So like I said in the last lecture, we were discussing what is an example, then example of a transaction, and then we were discussing the consistency state. Like at the start of the transaction, the sum of the accounts A and B is 1000. At the end of the transaction, what we have is the sum of the two accounts is again $1000. So these two are called the consistent states of the database. And for any reason, if the sum of the two accounts is other than 1000, that means it is not equal to 1000, it means we have reached an inconsistent state. Now that is called the consistency requirement. We have specified the consistency requirement, and if the sum of the accounts do not match that consistency requirement, that means we have reached to an inconsistent state. Similarly, the second example we did was integrity constraint, such as primary key and foreign key. The example given was that the sum of the balances of all the account minus the sum of loan amounts should be equal to the cash in hand. So let me give you the example of the same again. For example, we have deposits, the current deposits that we have, and the loan that has been given. तो आप मानकर चलिए अगर आपके पास A, B, C और D, the deposits that you have is 1000, 1300 and 200. Now the loan given to A and B is 1500 and 400. Okay, so just check that sum of the deposit that we have is 2500. The loan that has been given is 1900. And the balance cash in hand at the moment I am having is, let's say, 400. But how much should I have? I should have had 2500 minus 1900 is equals to 600. So that means this is an inconsistent state. लेकिन इस स्टेट तक पहुंचने के लिए कि बैलेंस शुड बी 500, मैंने दो अकाउंट्स की हेल्प ली है. दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज एन इंटीग्रिटी कांस्टेंट. सो व्हाट हैज टू बी डन? हमने कोई ना कोई ऐसी ट्रांसैक्शन की होगी जिसके कारण कोई गलती हुई है, या कोई ऐसी ट्रांसैक्शन जो कंप्लीट नहीं हो पाई, सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाई, तो हमें उसको कैंसिल करना पड़ेगा सो दैट वी कैन रीच अ कंसिस्टेंट स्टेट. और वहां पर पहुंचने के बाद हम उस ट्रांसैक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू इवन फर्दर. नाउ what is consistent, what is inconsistent, and what is the life cycle of moving between consistent and inconsistent? Let us suppose this is your transaction 1, and this is the start of time of the transaction, and this is the end time of the transaction, and this is where we are moving from start to the end. That means within this period what we say is that we are executing the transaction. हम ट्रांसैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. Now it is pretty much sure that when we start the transaction, it is in the consistent state. That means here a transaction is in consistent state. And when the transaction successfully completes, we consider that the database will again be in a consistent state. But during the execution of the transaction, we temporarily become inconsistent. जैसे इस फेज के अंदर हो सकता है, for this much of a period we are inconsistent. For example, जब स्टार्टिंग में आपका दोनों अकाउंट्स का जो सम था वो 1000 था, फिर हमने $50 डिडक्ट कर लिए अकाउंट नंबर ए में, तो टेम्पररली जो दोनों का सम था वो 950 हो गया.
और एंड में जब हमने $50 ऐड कर दिए बी में तो वो फिर से 1000 बन गया। लेकिन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन बीच में एक ऐसा टाइम आया जब आपका जो डेटाबेस था वो इनकंसिस्टेंट था। नाउ इन केस अवर ट्रांजैक्शन फेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर आपका ट्रांजैक्शन उस पीरियड में फेल हो जाता है जब आपका डेटाबेस टेम्पररी इनकंसिस्टेंट था, तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे सो दैट you can go back to the consistent state, otherwise everything is fine. और इसके अलावा मींस बेसिकली सिस्टम फेलियर और सॉफ्टवेयर फेलियर, अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिक में ही गलती कर दी है देन ऑब्वियसली यू विल एंड अप इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन को कैंसिल करके अपने लॉजिक को रीराइट करना पड़ेगा। करेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सो दैट देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट क्या होती है? द नेक्स्ट इज आइसोलेशन रिक्वायरमेंट। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट जो है वो इंश्योर करती है कि आपकी एक ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी दूसरी ट्रांजैक्शन इंटरफेयर नहीं करती है। तो आइसोलेशन का मतलब क्या है? आइसोलेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन T1 है और आपकी ट्रांजैक्शन T2 है, यानी दो ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, तो अगर मैं ट्रांजैक्शन T1 को एग्जीक्यूट करता हूं, let's suppose that the transaction T1 is getting executed, then the transaction T2 should not be executed at the same time. So अगर ऐसा है तो then we say that we are executing the transaction T1 in isolation. Isolation means that the transaction T1 is executing alone. No other transaction in the system is being executed at the same time. In case if two transactions are executing simultaneously or in an interleaved fashion, then we say that the transactions are being executed concurrently. तो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि व्हाट इज concurrent execution and what is serial execution. तो मान लीजिए अगर आपका एक ट्रांजैक्शन है T1 और एक ट्रांजैक्शन है T2. This is the start point of the first transaction and this is the end point of the finish time of the first transaction, and this is the start time of the second transaction and this is the finish time of the second transaction. As you can see that the start time of transaction 2 is greater than the finish time of transaction 1, which means that the two transactions were executed in a serial order or both the transactions were executed in isolation. यानी अगर सेकंड ट्रांजैक्शन का स्टार्ट टाइम फर्स्ट ट्रांजैक्शन के फिनिश टाइम से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड ट्रांजैक्शन तब स्टार्ट की गई जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन खत्म हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट की गई, पहले T1 को खत्म किया गया और फिर T2 को स्टार्ट किया गया, एंड दिस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन. Now I will give you an example of what is called a concurrent execution. फिर से दोबारा से इसको चेक करते हैं. If this is the start time of the transaction T1 and this is the finish time of transaction T2 and this is the start time of transaction T2 and this is the finish time of the transaction T2. So this is transaction 1 and this is transaction 2. As you can see here now that the start time of transaction 2 is less than the finish time of transaction 1. इसका मतलब क्या है? That the two transactions are being executed
concurrently or in an interleaved manner. Okay, now there is a possibility that these two transactions are interfering, and there may be a possibility that we may read an inconsistent state. There is a possibility that we may read an inconsistent state. Okay, इतना श्योर है, मैं आप सबको दोबारा रिपीट कर रहा हूं जो अभी तक हमने इस स्लाइड के अंदर देखा है। अगर उसका एक की पॉइंट बताना हो तो वो मैं आपको बताने लगा हूं, एंड दैट इज कि अगर हम लोग सीरियल एग्जीक्यूशन करेंगे देन देयर आर नो चांसेस ऑफ रीडिंग और राइटिंग इनकंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। लेकिन अगर हम लोग कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करते हैं then there are very high chances that you are reading or writing into an inconsistent state. But still we will prefer the execution in concurrent fashion because the execution speed and many other things, they give us a lot of advantage. Serial execution को प्रेफर नहीं किया जाता है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन को ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ता है कि वी आर नॉट रीडिंग और राइटिंग एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। तो अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि what is the meaning of reading and writing an inconsistent state. इसके बाद मैं आपका प्रॉब्लम्स भी लूंगा, तो अभी आप इस पर फोकस कीजिए, देन वी विल बी एबल टू नो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यहां पर आप देख सकते हैं कि यू हैव अ ट्रांजैक्शन T1। अगर इसको आपने ध्यान से देखा है तो दिस इज योर ट्रांजैक्शन T1, this is your transaction T2. Now this is the start time of transaction 1 and this is the finish time of transaction 2, and this is the start time also and finish time of transaction 2. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं that the start time of transaction 2 is less than the finish time of transaction 1. इसका मतलब क्या है? The two transactions are being executed concurrently. ठीक है, साथ साथ में चल रही है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड कंकरेंट। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पैरेलल और कंकरेंट के अंदर। कंकरेंट डज नॉट मीन पैरेलल। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? दैट यू आर एग्जीक्यूटिंग टू और मोर ट्रांसैक्शंस एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। बट कंकरेंटली का मतलब क्या होता है? इंटरलीव्ड। लेकिन कभी भी कोई भी ट्रांसैक्शन, दो ट्रांसैक्शंस एग्जैक्टली सेम टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती हैं। यहां पर आप देखिए, जब मैंने स्टेप नंबर 3 को एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद ट्रांसैक्शन T2 को एग्जीक्यूट किया, लेकिन जब ट्रांसैक्शन T2 एग्जीक्यूट हो रही थी एग्जैक्टली एट द सेम टाइम T1 का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि स्टेप नंबर 1 ऑफ ट्रांसैक्शन 1, स्टेप नंबर 2 ऑफ ट्रांसैक्शन 1, स्टेप नंबर 3 ऑफ ट्रांसैक्शन 1, और एकदम से आ गई आपकी ट्रांसैक्शन 2 और फिर से शुरू हो गई आपकी ट्रांसैक्शन 1। तो इसका मतलब क्या है? ये देखिए, ये जो सीरियल ऑर्डर है ये हमें बता रहा है कि दो ट्रांसैक्शंस कंकरेंटली चल रही हैं। कभी कभी T1 चलती है, कभी T2 चलती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही टाइम पर T1 कॉमा T2 यानी दोनों चलेंगे। सो दिस इज द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड कंकरेंट एग्जीक्यूशन। चलिए, नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर एग्जांपल कि इनकंसिस्टेंसी क्यों आ जाती है जब हम कंकरेंट करते हैं। तो इस एग्जांपल में आपको मालूम है कि A has 500, B has 500, the total is 1000. At the end of the transaction, A will have 450, B will have 550, and the total will again be 1000.
Now, once I execute the statement number 1, statement number 2 and statement number 3, यहाँ पर situation क्या है? यहाँ पर situation है A is 450, B is 500 and the total is 950. Temporarily we are in an inconsistent state. ऑब्वियसली ये रिजॉल्व हो जाएगा जब आपके हम स्टेप नंबर 6 को एग्जीक्यूट कर लेंगे, लेकिन टेम्पररीली वी आर इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। और उसी टाइम ट्रांसैक्शन 2 का स्टेप आया कि भाई मेरे को ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ और इन दोनों का टोटल बताओ। अब ट्रांसैक्शन 2 इज ट्राइंग टू रीड द कंटेंट ऑफ अकाउंट ए एंड बी, जबकि ट्रांसैक्शन 1 अभी एग्जीक्यूट हो रही थी। तो इससे क्या हुआ कि ट्रांसैक्शन 2 जो प्रिंट करेगी दैट विल बी एन इनकंसिस्टेंट वैल्यू। नाउ हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन? टू ओवरकम दिस सिचुएशन वी हैव टू एंश्योर दैट ये जो वैल्यू रीड हो रही है, या तो हम लोग इस वैल्यू को यहां पर एग्जीक्यूट करें या इस ट्रांसैक्शन को स्टेप नंबर 6 के बाद एग्जीक्यूट करें। ठीक है, बिकॉज हम जानते हैं दैट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रांसैक्शन वी आर एट अ कंसिस्टेंट स्टेट and after the end of the transaction we are at the consistent state, whereas in the middle हम लोग शायद we might be in an inconsistent state। तो ये प्रॉब्लम है हमारी कंकरेंसी की। कंकरेंसी के सॉल्यूशंस देखेंगे, लेकिन अभी उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन बता दिया कि आप कंकरेंसी करते ही क्यों हैं। आप सबसे पहले T1 को चलाइए, T1 जब फिनिश हो जाएगी उसके बाद T2 को चलाइए। अगर आप ट्रांसैक्शन को सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो इज दिस पॉइंट क्लियर? Please type yes in the chat window if you are clear that what is the advantage of executing a transaction in serial or in isolation as compared to executing a transaction concurrently. So let us move to the next slide. एसिड प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपको जब कोई कहता है कि डिफाइन ट्रांसैक्शन, तो कुछ लोग ट्रांसैक्शन को डिफाइन करते समय ही अपने आंसर में एसिड प्रॉपर्टी को भी बता देते हैं, या कई लोग सेपरेटली डिफाइन करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत लोग आपसे या वाइवा टाइम भी आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द एसिड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसैक्शन। एक ट्रांसैक्शन अगर इन चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है या फुलफिल करती है देन वी कॉल दैट दिस ट्रांसैक्शन इज अ कंप्लीट ट्रांसैक्शन। तो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द एसिड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसैक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट इज अ ट्रांसैक्शन? अ ट्रांसैक्शन इज अ यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो कि डेटाबेस को या तो एक्सेस करती है, एक्सेस का मतलब क्या है कि रीड करती है, या पॉसिबली उसको अपडेट करती है यानी उसके ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो अब हमें क्या करना है? हमें डाटाबेस की इंटेग्रिटी या कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। तो वो मेंटेन करने के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हैं: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। और जो इनके फर्स्ट लेटर्स हैं दे आर कॉल्ड द एसिड प्रॉपर्टी। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दीज फोर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं दैट द ट्रांसैक्शन शुड आइदर बी कंप्लीट और शुड बी एट द स्टार्ट, मिडल में नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी ट्रांसैक्शन T1 है, इसके अंदर 6 स्टेप्स हैं, तो एसिड एटॉमिसिटी क्या कहती है? आइदर ऑल ऑपरेशंस आर प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड, यानी सारे के सारे ऑपरेशंस खत्म हो चुके हैं, या कोई भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। या तो आप बोले कि आई हैव नॉट डन एनी ऑपरेशन और आई हैव डन ऑल द 6 ऑपरेशंस। अगर
आप कहें कि मैंने अपनी ट्रांजैक्शन के 3 स्टेप्स खत्म कर लिए और उसके बाद सिस्टम रुक गया, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द एटॉमिसिटी, या एटॉमिसिटी वायलेशन हो गया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1, 2 एंड 3 जो 3 स्टेप्स किए हैं उनको कैंसिल कर दीजिए ताकि आप वापस जीरो पर आ सकें। और अगर आपने 6 स्टेप्स पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, दैट मींस यू आर सेटिस्फाइंग द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, या तो सारे के सारे ऑपरेशंस खत्म कीजिए, या कोई भी ऑपरेशन अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो दैट मींस एट द मोमेंट यू आर फॉलोइंग द एटॉमिसिटी। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, करंटली चल रही है, तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब खत्म हो जाएगी तो इट विल रीच द ऑल एंड ऑफ ऑल ऑपरेशंस। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन हॉल्ट हो गई है या रुक गई है किसी कारण से, किसी एरर के कारण, एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड ऑल द ट्रांजैक्शंस, तब हम कहते हैं कि एटॉमिसिटी हैज बीन वायलेटेड। सेकंड इज कंसिस्टेंसी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप ट्रांजैक्शन को आइसोलेशन में एग्जीक्यूट करते हैं, देन वी इंश्योर दैट द सिस्टम इज इन कंसिस्टेंट स्टेट। लेकिन अगर आप कंकरेंटली भी एग्जीक्यूट करते हैं, तब भी आप एक टॉपिक है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सीरियलाइजेबिलिटी कहते हैं। अगर हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन करेंगे एंड वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, तब भी हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट रह सकता है। लेकिन अगर हम आइसोलेशन में एग्जीक्यूट करेंगे, दैट मींस द डेटाबेस विल definitely be in a consistent state at the start and at the end of the transaction. कंसिस्टेंसी क्या होती है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइसोलेशन मीन्स दैट एग्जीक्यूटिंग वन ट्रांसैक्शन एट अ टाइम, दैट मीन्स नो टू ट्रांसैक्शंस आर एग्जीक्यूटिंग इन द इंटरलीव्ड मैनर। इसका मतलब क्या है, if you have two transactions ti and tj, it appears that ti, either tj finished execution before tij started or tj started। ये जो मैंने आपको बताया था, स्टार्ट टाइम शुड बी of the second transaction should be greater than the finish time of first transaction, ये वही बता रहा है। अगर हमारे पास T1 एंड T2 है, तो T1 का फिनिश टाइम यहाँ पर है और T2 का स्टार्ट टाइम यहाँ पर है। तो ये वही कहना चाहते हैं, दैट मीन्स द TJ, अगर मैं TJ की बात करता हूँ तो इट फिनिश्ड एग्जीक्यूशन बिफोर TI स्टार्टेड, यानी जब TI स्टार्ट हो रही थी उससे पहले ही TJ फिनिश हो चुकी थी। अगर आप ये वाला काम फॉलो करते हैं, दैट मीन्स यू आर एग्जीक्यूटिंग योर ट्रांसैक्शंस इन द सीरियल ऑर्डर, वन आफ्टर द अदर, एंड हैंस यू आर एग्जीक्यूटिंग देम इन द आइसोलेशन। अगर आप आइसोलेशन में नहीं करते हैं तो आप सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो कीजिए। सीरियलाइजेबिलिटी इन केस ऑफ कंकरेंसी, वो क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस। एंड इन द एंड मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है कि जब आपकी ट्रांजैक्शन में 6 स्टेप्स थे, आपने सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको उस ट्रांजैक्शन को डेटाबेस के अंदर परमानेंट कर देना है। ठीक है, दैट मीन्स ड्यूरेबिलिटी मीन्स आपको उसको कमिट कर देना है कि दैट इज इट, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने चेक कर लिया है, नाउ मेक दीज चेंजेस परमानेंट इनटू द डेटाबेस। और जैसे ही आप कमिट कर देते हैं, दैट मीन्स दोज चेंजेस विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड इनटू द डेटाबेस। वो चेंजेस डाटाबेस के अंदर परमानेंटली रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर उसके बाद सिस्टम फेलियर हो भी जाता है, देन देयर इज नो नीड टू वरी। अगर आपने ड्यूरेबिलिटी अचीव कर ली है तो योर चेंजेस विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस। लेकिन अगर 6 के 6 स्टेप्स खत्म होने के बाद आपने उसको कमिट नहीं किया है या उसको लॉक नहीं करते हैं कि दिस इज मेक दिस चेंजेस परमानेंट, अगर उस टाइम सिस्टम फेलियर हो जाता है तो देयर इज अ चांस कि आपके जो चेंजेस हैं वो परमानेंटली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे।
So this is what is called the acid property. And the last two slides are very basic slides that I am going to discuss. And it is important that we finish with these two topics. One is called processing the transactions in DBMS. जब हम DBMS में किसी भी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर स्टेप ऑफ ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं. Every high level operation may be separated into number of low level tasks. जैसे कि आपको बताया गया था कि आपका ट्रांजैक्शन वन लाइन ट्रांजैक्शन था कि आप $50 को एक अकाउंट में से ट्रांसफर कर दीजिए सेकंड अकाउंट में. लेकिन जब उसको लो लेवल टास्क में डिफाइन किया तो टोटल नंबर ऑफ 6 ऑपरेशंस लगे उस टास्क को कंप्लीट करने में. ठीक है. तो जब हम लोग ये काम करते हैं तो बेसिकली एट द लो लेवल वी आर परफॉर्मिंग 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस. वन इज कॉल्ड रीडिंग द कंटेंट. जब मैंने कहा रीड ए, आई रिपीट, रीड ए, then a is equals to a minus 50 and then write a. So this is basically read and this is called modify or write. So read item क्या है? This command reads the data element from storage to main memory. मैंने आपको कल बताया था कि आपकी डिस्क के अंदर परमानेंटली ये डाटा पड़ा होता है. जब मैं रीड करता हूं तो ये आपकी मेन मेमोरी के अंदर चला जाता है. आप जो भी चेंजेस करते हैं मेन मेमोरी के अंदर, दोज चेंजेस आर टेम्पररी. उसके बाद मॉडिफाई आइटम. दिस कमांड आइटम ऑल्टर्स द आइटम वैल्यू प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी. ये देखिए रीड ए. रीड ए ने क्या किया? कंटेंट को रीड किया. दैट मींस अगर आपकी डिस्क में a इज इक्वल टू 500 था तो आपकी मेन मेमोरी में a इज इक्वल टू 500 हो गया. उसके बाद मैंने कहा a इज इक्वल टू a माइनस 50. विच ऑपरेशन इज दिस? दिस इज कॉल्ड द मॉडिफाई ऑपरेशन. और मॉडिफाई ऑपरेशन जो होता है वो उस डेटा के ऊपर होता है जो आपका मेन मेमोरी में पड़ा है. तो दैट मींस a की वैल्यू चेंज करके हमने 450 कर दी. उसके बाद है आपका राइट ऑपरेशन. राइट ऑपरेशन का मतलब क्या है? जो चेंजेस या डेटा आपका मेन मेमोरी में पड़ा है उसको उठाकर डिस्क के अंदर लिख दीजिए. सो दिस कमांड राइट्स द चेंज्ड वैल्यू आइटम. जो भी आपने यहाँ पर चेंजेस किए हैं उनको राइट करता है, लेकिन कहां पर करता है? फ्रॉम मेन मेमोरी बैक टू द स्टोरेज. That means read a is equals to a minus 50 and write a. These three operations reflect read item, modify item and write item. So I hope this is clear to everyone. And with this we will come to the end. हम लोग next नहीं करेंगे because the next slide is interlinked with the other रिमेनिंग स्लाइड्स. तो हमें कोई दिक्कत आ सकती है. तो अभी तक के लिए आप इतना समझ लीजिए जो हमने किया है. बट वी हैव बीन मूविंग वेरी स्लोली इन अवर लेक्चर बिकॉज वी वर स्टार्टिंग विद द न्यू यूनिट. और मैं चाहता था कि आपको फंडामेंटल जो हैं वो एक बार क्लियर हो जाए. लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू पिक अप अ लिटिल बिट ऑफ स्पीड सो दैट द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. थोड़ा सा तेज करेंगे. आपको फंडामेंटल समझ में आ गए हैं तो आगे वाली चीजें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. एंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड आइदर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और द डेटा स्ट्रक्चर्स. तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी बिकॉज आई बिलीव दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द टू सब्जेक्ट्स. So with this we come to the end of the lecture, and in case if you have any questions, please feel free to ask your questions before the start of the next lecture. Thank you.